Hello. Okay. So now, as a last part of electrostatics, we have to discuss few things related to boundary conditions. Huh? तो बाउंड्री कंडीशंस, जैसे तुम्हारे पास गॉस थ्योरम है, वेयर E dot dA is there, right? Closed integral E dot dA. So suppose there are many surfaces, कोई cube है, so perpendicular will be to the each surface, right? And as a result of that, I have already told you two boundary conditions. For electric field, it is E perpendicular above minus E perpendicular below is equal to sigma by epsilon naught, and E parallel above minus E parallel below is equal to 0. So this is the first one, and second one is related to capital D, क्योंकि capital D भी गॉस थ्योरम के फॉर्म में लिखा जा सकता है. So from that also we will get the boundary condition, and that is D perpendicular. अब आप बता सकते हो D perpendicular above minus D perpendicular below will be sigma free. Sigma free. And D parallel above minus D parallel below is equal to P parallel above minus P parallel below. मैंने शो किया था ना आपको, del cross D is equal to del cross P. So these are the boundary condition related to electric field and electric displacement vector. Similarly, we will get boundary condition about magnet. तो जितना अच्छे से आप इलेक्ट्रोस्टैट जल्दी से रिवाइज कर लोगे, you will be very very comfortable in magnetic domain, because fortunately it is very symmetric. The maths is very symmetric. Physics तो different है, electric field and magnetic field, but mathematics that we do is very very similar. ठीक है ना? तो ये नोट कर लो बाउंड्री कंडीशंस, और इनके हेल्प से लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स. At the interface between two dielectrics, this is the question. At the interface between two dielectrics, this is the interface. The electric field lines bent as shown in the figure. E1 and E2. This is epsilon 1, this is epsilon 2. This is theta 1, this is theta 2. This is the interface. At the interface between two dielectrics, the electric field lines bend as shown in the figure. Prove that tan theta 2 by tan theta 1 is equal to epsilon 2 by epsilon 1. ठीक है? So perpendicular means perpendicular to the interface. Don't forget that.
जब हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस. एंड व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस वो इमेजिनरी सरफेस है जो दो अलग अलग मीडियम्स को सेपरेट करता है. जैसे मान लो वाटर सरफेस, वाटर से आप एयर में चले जाओगे अगर उस सरफेस को क्रॉस किया तो. सो दैट सरफेस इज इंटरफेस. ओके, नाउ लेट अस अप्लाई परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट्स. So what is charge density here on the interface given? 0. There is no surface charge present. Yes, in the question. So E perpendicular above minus E perpendicular below is equal to sigma by epsilon naught. ठीक है. E परपेंडिकुलर अबव क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस E लिखो. E परपेंडिकुलर अबव माइनस E परपेंडिकुलर बिलो. तो यहां पे मीडियम्स हैं एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2. देयर इज मीडियम प्रेजेंट. So what can I write about the D? D perpendicular above minus D perpendicular below is equal to sigma F, which is 0. ठीक है ना. D is, D क्या होता है? एप्सिलॉन E. तो एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1 माइनस एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2 is equal to 0. ठीक है. तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि डी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले ले रहे हैं और ई का पैरेलल कंपोनेंट ले ले रहे हैं. बिकॉज परपेंडिकुलर में व्हेन आई टेक डी, एप्सिलॉन विल बी इंक्लूडेड, and when I write the parallel component, so parallel component because it is at the interface, so there both epsilons are like equal. समझ रहे हो ना? It is at the interface, you can see the medium is just changing. So write D parallel D parallel A or E parallel, I will write E parallel above minus E parallel below is equal to 0. So what it will become? E1 sin theta minus E2 sin theta 2 is equal to 0. ओके. अगर आप डी ही लेना चाह रहे हो तो पैरेलल में एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 करना पड़ेगा. ठीक है. इसमें एप्सिलॉन आ नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस. ओके. सो व्हाट विल हैपन? डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को.
So epsilon 1, divide these equations. Epsilon 1 cos theta 1 by sin theta 1 is equal to epsilon 2 cos theta 2 by sin theta 2. ओके एंड क्या बन जाएगा? तो इसको इस साइड ले लें, tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल टू epsilon 2 by epsilon 1. Is it okay? Next, suppose YZ plane forms the boundary between two dielectric medium. Suppose YZ plane forms boundary between two dielectric mediums with epsilon 1 is equal to 3 and epsilon 2 is equal to 4 as dielectric constant. If electric field in region 1 is E1 is equal to 4x plus 3y plus 5z and electric field in region 2 is question mark. So suppose this plane is YZ plane. This plane is YZ plane. So electric field, this is region 1 and this is region 2. This plane is YZ plane. YZ plane के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? एक्स एक्सिस. सो जो भी चेंज आएगा वो एक्स के अबाउट आएगा. सो दैट मीन्स वी ऑलरेडी नो दैट y2 विल बी इक्वल टू सम ax कैप प्लस 3y कैप प्लस 5z कैप. यस और नो? Because yz is parallel component is continuous, so that will remain same. अब perpendicular component पे लगा दो, E perpendicular या D से लगा दो, epsilon is there ना, तो D से लिख दो. D perpendicular above minus D perpendicular below is equal to 0. So epsilon 1 into 4 minus epsilon 2 into A is equal to 0. epsilon 1 कितना है? 3. So 12 minus epsilon 2 is 4. A is equal to 0. So A is equal to how much? 3.
So what is the electric field in second region? बोलो भाई. 3x cap plus y plus 3y cap plus 5z cap. हाँ बताओ भाई क्या कह रहे हो? आ सकता है, वैसे आता रहता है. ओके बाद में देखेंगे भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगे भूकंप आया कि नहीं आया. ओके. टू इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड, ये समझ आ गया सबको? तो व्हेन टू मीडियम्स आर गिवन वी विल यूज डी एंड पैरेलल कंपोनेंट के लिए ई. टू इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडिया 1 and 2 two infinitely extended homogeneous dielectric media 1 and 2 with K1 is equal to 2 and K2 is equal to 5. Respectively, meet at Z is equal to 0 plane. Meet at Z is equal to 0 plane. A uniform field capital E exists everywhere. A uniform field capital E exists everywhere. E1 is given by 2 I cap minus 3 J cap plus 5 K cap. E2 is equal to question mark. तो K1 K2 क्या है, समझ आ रहा है क्या? एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2. So Z is equal to 0 plane means XY plane. XY plane. So what is the perpendicular? Z. By Z is equal to 0 plane means what? XY plane. So if it is XY plane, what is the perpendicular? Z. ठीक है, तो इसका मतलब फील्ड कैसी होगी बताओ? सम 2 I cap minus 3 J cap plus A K cap, something like this.
अप्लाई करो, सेम वही करना है। डी परपेंडिकुलर ए माइनस डी परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू 0। यस, डी परपेंडिकुलर ए माइनस डी परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? 5। सो 5 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस, बोलो भाई, माइनस ए एप्सिलॉन नॉट 5 is equal to 0. So epsilon not gone. What is A is equal to 2. A is equal to 2. So what is the profile of electric field? 2i cap minus 3j cap plus 2k cap. समझ आया बाउंड्री कंडीशंस? ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे हैं, बट हर सिचुएशन में टू अंडरस्टैंड दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिसकंटिन्यूअस by sigma by epsilon naught and parallel will be same. That is important. So I will do a question in which this will be used. Okay. अब आ गए हम लास्ट टॉपिक पे, which is forces on dielectrics. आपने देखा है कि कंडक्टर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज जैसे ही आप कंडक्टर को रखते हो चार्जेस गेट सेपरेटेड and it is attracted towards the electric field. So similarly dielectrics also get attracted towards the electric field, but for entirely different reasons, because there is no free charge present in the dielectrics. ठीक है ना? तो डाइलेक्ट्रिक्स में एक बहुत ही अलग टाइप की सिचुएशन होती है. लेट मी एक्सप्लेन यू कि सपोज दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज प्लस सिग्मा, दिस इज माइनस सिग्मा. So electric field sigma by epsilon naught is present inside the capacitor, right? When you write the potential, it is equal to ED. Suppose D is the distance between the plates, infinite plates. Okay? मोबाइल सब लोग अंदर रख दो भाई, अभी ऐसे क्या जरूरत पड़ रही बताओ. V is equal to ED. So V is equal to sigma by epsilon naught D. Okay? अब what is sigma is equal to charge by area. Yes, and Q is equal to VC. So C is equal to Q by V. So get Q by V from this. It will be epsilon naught A by D. This is the capacitance of a parallel plate capacitor. And if whole of the dielectric is filled, it will become what?
epsilon naught k a by d, or k is epsilon r, k is equal to epsilon r, अगर पूरे मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं. ओके. एंड ऑल्सो देर इज अ वेरी नाइस डेरिवेशन. ये समझ आ गया? देर इज वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन इफ inside is not totally filled but filled with a dielectric of thickness T, and this total is D. Now the potential will become what? This is a dielectric, so here the field will be sigma by epsilon naught, here it will be sigma by epsilon naught K, electric field. And potential will be divided into two regions. So potential V is equal to ED will be sigma by epsilon naught into D minus T, and plus sigma by epsilon naught K into T. So this will become V is equal to Q by epsilon naught A D minus T plus Q by epsilon naught A K into T. कैपेसिटेंस क्या था? Q by V. Take Q by V this side, so you will get epsilon naught A. ये पूरा इधर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है? Q by V इधर आएगा, so यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? D minus T epsilon naught A. ठीक है. सो एक स्टेप और करता हूं. सो इट विल बिकम V is equal to Q D minus T by epsilon naught A plus T by epsilon naught K, और A भी है. ठीक है. तो Q by V क्या हो जाएगा? C is equal to Q by V is equal to epsilon naught A upon ये इधर आ जाएगा ना, इट विल कम इन द डिनोमिनेटर. कितना हो जाएगा? D माइनस टी प्लस टी बाई, जस्ट वेट, D माइनस टी प्लस टी बाई के. ठीक है. सो इट विल बिकम epsilon naught A upon D minus T 1 minus 1 by K. This will be the, if you want to compare it with your original C naught, कितना हो जाएगा? C naught by 1 minus T by D 1 minus 1 by K, where C naught is epsilon naught A by D. ओके. सो ये कैपेसिटेंस हो गया व्हेन देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक हेयर. डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K, और थिकनेस कितना है? T. नाउ what happens when a dielectric is kept inside the electric field?
forces on dielectric. तो अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रख देता हूं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इट इज attracted inside the electric field. Okay, let me show you. एक फिगर सा बनाना पड़ेगा. So this is suppose ये सपोज कोई ऊपर वाली पैरेलल प्लेट है. इट विल बी लाइक दिस एंड ये इसके पैरेलल होगी. ओके, इट विल बी लाइक दिस एंड लोअर प्लेट इज दिस. And suppose that something is kept, a dielectric is kept like this, little bit outside and little bit inside, like this. Like this. समझ आ रहा है? So these are the parallel plates and a dielectric is kept. Now this dielectric will be taken, engulfed by the electric field. It will pull it inward, right? और उसकी वजह बड़ी complicated है. The reason behind this is, जो चीज हम नॉर्मली कंडक्टर के केस में हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, वी कंसीडर द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म. आपने देखा है फील्ड बिटवीन द इनफाइनाइट शीट्स वी कंसीडर यूनिफॉर्म. लेकिन तुम खुद सोचो कि फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होके एक बाउंड्री के तुरंत बाद जीरो हो जा रही है. सो यानी कि बाउंड्री पे कुछ तो फ्रिंज फील्ड होगी, राइट? अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ फील्ड होगी towards the boundary. So actually that is taking this inside. तो ये जो पूरा ये जो बार है, this bar is attracted inside. Okay? So suppose this is the dielectric and these are the parallel plates, in between there is electric field. तो वैसे ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या लगेगा कि भाई this is positive, suppose this is negative, तो field is from positive towards negative, a uniform field. तो ये तो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा. So there is no tangential component ना which is pulling it inward. So इसलिए that is not the reason. Reason is because at the edge there is a different kind of complicated field. You can call it fringe field or something like that. That is participating. अब उसको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं मैकेनिकली इसको थोड़ा सा खींचूं तो मुझे जो एनर्जी लगेगी बाय डिफॉल्ट वो उसी फोर्स के इक्वल हो जाएगी. दैट फोर्स which I will pull it little towards outside, there will be some change of energy. So उसके corresponding that calculation will give my original force. तो मैं फील्ड की कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा. I will not go into that calculation. मैं सीधा लिखूंगा that F force is equal to
सो आप ये बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। एनर्जी कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, यस और नो। एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। आई कैन प्रूव दिस, ठीक है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट, हाफ सी वी स्क्वायर इज द एनर्जी। और फोर्स क्या होता है, एनर्जी ग्रेडियंट। सो एफ इज, डिफरेंशिएट कर दो इसको, हाफ वी स्क्वायर dc by dx. Suppose this axis is x-axis, okay? X-axis. dc by dx. This is the formula for force. Potential, even if it is has a gradient, you can keep it constant. चाहे पोटेंशियल कांस्टेंट रख के चार्ज वेरिएबल को मान के निकाल लो, सेम आंसर आएगा। और चाहे पोटेंशियल कांस्टेंट रख दो, तो मैंने आई हैव केप्ट पोटेंशियल कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिंग, बिकॉज तुमने देखा था ना कि डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज कमिंग इनसाइड इट चेंजेस द सी, देखो। सो दैट मींस द सी विल चेंज, सो दैट्स व्हाई डीसी बाय डीएक्स। अब फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, डीसी बाय डीएक्स, यू विल जस्ट डिफरेंशिएट सी विद रेस्पेक्ट टू जिस डायरेक्शन में। अब एक्स सी हमेशा मत याद रखना, जिस भी डायरेक्शन में यू आर पुलिंग इट और टेकिंग इट आउट। So this will become our force on the dielectrics. Now let us calculate, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ भी चुका है एक्चुअली, नोट करो जरा। टू लॉन्ग कोएक्सियल सिलिंड्रिकल मेटल ट्यूब्स मैं चाहता हूं इसको अच्छे से लैंग्वेज नोट कर लो सब लोग। आई एम गिविंग यू two long coaxial cylindrical metal tubes, inner radius A and outer radius B, two long coaxial cylindrical metal tubes, inner radius A and outer radius small b, stand vertically in a tank of dielectric oil जिसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, काई ई। सो देयर इज अ टैंक फिल ऑफ ऑयल। ऑयल किस रंग का बना दूं, सपोज देयर इज ऑयल, ओके। ऑयल से क्या पर्पज है, व्हाई वी आर given oil in this question, because oil is a dielectric, oil is a dielectric. So this is oil and there is a cylinder which stands like this, and बीच वाला पार्ट जो है वो empty है, oil is filled here. So this is conductor and this portion little bit oil is filled. And this oil has susceptibility chi e. So finally we will have to write it in that term ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और chi का रिलेशन पता है ना आपको, एप्सिलॉन आर ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, 1 प्लस chi k of oil, dielectric constant of oil.
तो क्वेश्चन ये है, टू व्हाट हाइट, कितने हाइट तक ऑयल राइज कर जाएगा, टू व्हाट हाइट h डज द ऑयल राइज। तो दैट मीन्स ये है, व्हाट इज दिस हाइट, and let us consider that the length of the cylinder is L. So what will be this? L minus H. अब एक मिनिस्कस बन रही है, लेट मी मेक इट, जो आपको शायद नजर आएगी, ये दिख रही है, ये एक इंटरफेस बनेगा या नहीं, किसका किसका, ऑयल एयर, एयर को वैक्यूम ही लेंगे, वी विल टेक एयर एज अ वैक्यूम, सो दिस विल बी द इंटरफेस दैट विल बी फॉर्म्ड. This inner one is of radius A and this outer one is of radius B. बीच वाला पोर्शन what is filled? आधे में एयर और आधे में ऑयल. तो ये ऑयल, ये जो खाली जगह है फील्ड वाली, वो डाइलेक्ट्रिक को खींचेगा तो ऑयल ऊपर जाने की कोशिश करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? द स्पेस इज फिल्ड विद फील्ड एंड यू नो दैट डाइलेक्ट्रिक्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फील्ड. तो इसको पहले वाले फिगर से कोरिलेट कर पा रहे हो? पहले वाले में अ सेक्शन ऑफ ब्लॉक वाज देयर एंड इट वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फील्ड. So suppose vacuum is there, so dielectric will try to fill that vacuum because dielectric will feel attraction towards the field. So ऐसे ही यहां पे this portion is vacuum. So the dielectric will try to fill that. तो पूरा क्यों नहीं fill कर पाएगी? सही आंसर है, बताओ किसने बोला, बोलो भाई. Gravity, because the dielectric is pulled up by electrostatic force, obviously ये electrostatic force ही है, and gravity will pull down. तो जहां दोनों का बैलेंस होगा उतने हाइट तक चढ़ जाएगा. अगर ग्रेविटी नहीं होती, ओके, सो यानी कि हमें फोर्स बैलेंस भी कहीं करना पड़ेगा और कुछ कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट द हाइट h. सो लेट अस डू दैट. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं कि वी नो दैट जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, इट विल बी व्हाट, F इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स ही मान लेते हैं इसको, x एक्सिस. ओके, वी कैन टेक इट z एक्सिस ऑल्सो, वी कैन टेक इट x एक्सिस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट रीजन. इस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. व्हाट विल बी दैट, v विल बी इक्वल टू माइनस a टू b e डॉट dr. This will be the potential difference. और ये I can consider it as some infinite thin wire. मान सकते हैं ना, infinite thin wire with charge density lambda. तो क्या होती है फील्ड बताओ. So V will be equal to minus integral a to b lambda by 2 pi epsilon naught r dr, which is minus lambda by 2 pi epsilon naught ln a by b. This is the potential difference in the region.
ठीक है, तो इस रीजन में चार्ज डेंसिटी को लैम्डा ले लेता हूं, तो इस रीजन में चार्ज डेंसिटी हो जाएगी लैम्डा डैश। ध्यान से समझना, बिकॉज मीडियम अलग अलग है ना। अब देखो जरा कितनी इंटरेस्टिंग चीज आ गई। आपको पता है कि ये दिस इज द मिनिस्कस, ऐसा है मिनिस्कस, एंड दिस इज सपोज योर थिन वायर which is here of thickness A but still thin. Now you understand that electric field is like this, yes or no? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमेशा it will be perpendicular to the axis because charge density is on the lambda. So अगर वो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इस सरफेस के तो पैरेलल है, and parallel component of field is continuous. Parallel component of, so that means if I apply the parallel boundary condition, lambda by 2 pi epsilon naught, lambda by 2 pi epsilon naught k, ऊपर एयर का कितना ले लूं, इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर आर। दिस इज पैरेलल कंपोनेंट ए माइनस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ बी इज 0। अब ये देखो, अगर यहां बाउंड्री कंडीशन लगा पाओ तब बात है। इस टाइप का एक सरफेस है, फील्ड इज लाइक दिस, तो फील्ड हैज पैरेलल कंपोनेंट ओनली ना, so parallel component is continuous, so I have written parallel just above it is lambda charge density, and just below it is lambda dash, so this will become, डिवाइड कर दो, lambda dash by lambda is equal to कितना आ जाएगा, epsilon by epsilon naught which is equal to k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है ना, इट इज k, so lambda dash is equal to lambda k, got it or not, lambda dash is equal to lambda k। ठीक है, तो फ्री स्पेस में ये मैंने पोटेंशियल भी लिख रखा है, फ्री स्पेस। अब बताओ जरा टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज हेयर विल बी क्यू, व्हाई आई एम गोइंग टुवर्ड्स चार्ज, बिकॉज चार्ज से कैपेसिटेंस और फिर डेरिवेटिव फिर लाके पुट करूंगा ना, सो व्हाट विल बी टोटल चार्ज, कोई बताओ जरा, बताओ भाई, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, Q इज इक्वल टू, इतनी लंबाई कितनी है, L माइनस एच इंटू लैम्डा प्लस H इंटू लैम्डा डैश, and what is lambda dash, so it is Q is equal to L minus H lambda plus H K lambda, ओपन कर लो, lambda L minus H L H lambda plus H K lambda, okay,
K इज एप्सिलॉन आर, समझ रहे हो ना? जो एक K है दैट इज एप्सिलॉन आर. सो क्या बन जाएगा? दिस इज H लैम्डा, आई कैन टेक कॉमन ना, H लैम्डा एप्सिलॉन आर माइनस 1 प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू Q. दिस इज द चार्ज. ठीक है. नाउ व्हाट इज C? व्हाट इज C? C is equal to Q by V. तो C is equal to Q कितना है? H लैम्डा एप्सिलॉन R माइनस 1 प्लस लैम्डा L बाय V. ठीक है. अब F लिख लो. F इज इक्वल टू हाफ, बोलो भाई, V स्क्वायर डी सी बाय डी एक्स. अब ये समझो H इज वेरिएबल ना, आर यू गेटिंग इट? तो डी सी बाई डी एच भी लिख सकते हो चाहो तो. वेरिएबल क्या है? H. चलो करो, पुट करो. So F is equal to half V square dc by dh. What it will be? लैम्डा माइनस 1. ठीक है. तो ये आ गया तुम्हारा फोर्स. F इज इक्वल टू हाफ V एप्सिलॉन R हाफ V से V कैंसिल इनटू लैम्डा एप्सिलॉन R और माइनस 1. ये FE आ गया. ठीक है ना. नाउ राइट एट इक्विलिब्रियम Fe इज इक्वल टू mg. Fe वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ. खाली जगह की तरफ जाएगा ना, ऊपर वैक्यूम है, डाइलेक्ट्रिक विल बी पुल्ड अप. जैसे पहले अंदर की तरफ जा रहा था ना, बिकॉज दैट वाज द एम्प्टी स्पेस. तो Fe इज इक्वल टू mg. लिखो जरा, हाफ V लैम्डा एप्सिलॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू मास कितना होगा? जितने में ऑयल भरा हुआ है, पाई. आप लोग लिख नहीं पाओगे मुझे लग रहा है. B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू H इंटू रो इंटू G. ऑयल की मास डेंसिटी रो, मास डेंसिटी ऑफ ऑयल, चार्ज नहीं, इट इज मास डेंसिटी ऑफ ऑयल. ये हाई स्कूल प्रॉब्लम है कि एक बीच में से मिट्टी निकाल ली गई. अब बताओ कितना वॉल्यूम बचेगा? तो बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम. इसका एम्प्टी से लेना देना नहीं है. अब H लिख दो. दिस H इज दैट इक्विलिब्रियम H. आंसर आ गया आपका. H इज इक्वल टू बताओ भाई. H इज इक्वल टू हाफ V
लैम्डा एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रो एंड g. ओके v की वैल्यू पुट कर दो. Put the value of v. v कौन सा v है? वैक्यूम वाला. वो लैम्डा के टर्म में लिखा था ना आपने. लिखो जरा. हाँ मतलब दोनों के टर्म में लिख सकते हो. वट एवर इज गिवन. v दे रखा है तो v के टर्म में रहने दो. अगर लैम्डा के टर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. समझे? तो क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या है. पोटेंशियल v इज गिवन, so I can write in final answer like this. बस एक चीज और चेंज करना है. This thing is chi e because chi e is epsilon r minus 1. तो ये देखो, ये अल्टीमेट है, इसमें सब कुछ यूज हो गया. Gauss law, electric field is used, potential difference V is used, concept of capacitance is used, parallel component, boundary condition is used, mechanics is used, force balance, mg is equal to fe. So that's why this is ultimate question, right? Any doubt? तो पैरेलल कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग है. यहां पे जाके अप्लाई होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द इंटरफेस. इसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इंटरफेस. तो जब यहां बाउंड्री कंडीशन लगा पाओ तब समझो कि बाउंड्री कंडीशन सीख गए. पैरेलल जस्ट अबव लैम्डा, पैरेलल जस्ट बिलो लैम्डा डैश. सो जो मेरे क्वेश्चन में लैम्डा है, आई डोंट वांट लैम्डा बिकॉज आई हैव टू राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ, तो आई विल पुट दिस लैम्डा इज इक्वल टू v इनटू दैट. समझ गए? तो यू विल नॉट सी लैम्डा इन द फाइनल आंसर. लिख लो, यहां पे लिख लो वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v अपॉन ln a बाई b. तुम्हें तो आंसर v के टर्म में लिखना है. ठीक है भाई? सो दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुडे. ये यू कैन लीव इट फॉर जैम, बट जो छोटे छोटे क्वेश्चन, रो बी, सिग्मा बी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल डी, वो तो बहुत छोटे छोटे हैं. यू सी इट एज वन पार्ट ना, तो वन पार्ट इज वेरी स्मॉल. वो बात अलग है कि मैंने एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 पार्ट, ये भी निकालो वो भी निकालो. ठीक है ना? बट इवन इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्लियर्स योर कॉन्सेप्ट कि हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू.